calcium carbonate and 1 fluid. I am first thankful to Dr. Tanveer for saying some kind words about me. Although I have some little experience and I am glad that I have been invited to this place and I will share my little experience with you. This mushroom is nowadays a growing agriculture business, as you know. Why it is a growing agriculture business? Because it has low input costs and it has high return. If we see the world scenario, India a few years back, India was nowhere in the list of 10 top mushroom producing countries. But if we see the last year data, India is at sixth position with 2 lakh tons of mushroom production every year. Today we are here to deliberate on the spawn production. Spawn is one of the most important ingredient or requirement for successful mushroom cultivation. A high quality spawn will lay the foundation for high return, for high yield of mushroom. Like we see in other crops like wheat, rice and other field crops, if we have good seed, we are expected to have good crop. If we have seed that is diseased, that is weak, that is not of good quality, then we will not be having any good crop. This spawn is actually the seed of mushroom. Okay. How it is prepared, what are its various requirements, and how we can prepare a good quality spawn. On that we will deliver lecture on PowerPoint presentation and practically here I will demonstrate you. Although spawn is prepared on different substrates like wheat, like maize, like grains of wheat, maize and other substrates we can also use. But wheat grains throughout the world are considered best substrate for spawn cultivation. So we are having here wheat grains which have been cleaned and they are first to be boiled to soften them. Why we soften the wheat grains? Because it will be palatable to the fungus. You know mushroom is a fungus and its mode of nutrition is holophytic. It will release some enzymes and then it will absorb the nutrients. Okay. So if it is hard, the fungus will have difficulty in penetrating this in extracting nutrition. So what we do, we will first get the clean wheat, then boil it for 10 to 15 minutes so that it is softened. After softening, we will drain the excess water and dry it on the in shade on table here under the fan. After it is dried, we will add calcium carbonate 0.5% and gypsum at the rate of 2%. Okay? What is the function of calcium carbonate and gypsum in spawns? We should know this. Calcium carbonate basically is required to maintain the proper pH for the fungus. And to the layman, I can say that this pH is like we use wheat flour. We eat the chapatis and other things. And this pH is like the salt in the wheat flour. If salt is high, we will not be able to consume the rotis or chapatis. If it is low, it will not have good taste. Similarly, this pH, if it is very high, the fungus will not be able to grow on it. And if it is very low, that means it will be acidic, it will not be favorable for the fungus. Okay? So we will do practically all steps. First we will burn this gas. आप डाल दीजिए इसको जला दीजिए because this is practical. जल रहा है. So to reduce the time, we will cover it with a lid. जब इसको lid डालेंगे हम, तो उससे क्या होगा? जल्दी boil हो जाएगा, है ना? Let us place the lid on it and let us wait for 10 to 15 minutes. Then we will go step by step. And what is the function of, I have told you the function of calcium carbonate. Calcium carbonate and 1 fluid. ठीक है? That means calcium carbonate and gypsum is in the ratio of 1:4. Now how much calcium to be used depends upon the quantity of wheat. जितना आप लोग आपके पास परसेंटेज पता है आपको कि 0.5% है, ये 2% है, तो जितना आपकी क्वांटिटी होगी उस हिसाब से उनकी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है? तो
we will do it practically so that you people learn it. Here, और जैसे मैंने आपको कहा कि मशरूम जो है एक इमर्जिंग एंटरप्राइज है, एग्री एंटरप्राइज है. अगर हम इंडिया की स्टेट्स को भी देखेंगे तो प्रीवियसली हरियाणा, पंजाब एंड अदर स्टेट्स वर टॉप इन द प्रोडक्शन ऑफ मशरूम्स. But if we see the changing scenario today, we are having high mushroom production from the Bihar side. We are having mushroom production from the Gujarat side. That means people have understood that this is a profitable enterprise. So in Kashmir we have all the ingredients required for production of this mushroom. जो भी substrate होगा उसके लिए हमारे पास सारा material है. So why to be behind other people, other states? We will also try that our youth should also get some sort of employment, because nowadays mushroom production is not part-time job. It is a full-time job also. But people may accept this job as part-time as per their availability or full-time job. अगर कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है या प्राइवेट जॉब कर रहा है, अगर वो सुबह शाम भी आधा एक घंटा देगा मशरूम के लिए तो उसमें मशरूम की वो काश्तकारी कर सकता है, अच्छे से कर सकता है और एक्स्ट्रा इनकम जो है वो ले सकता है. तो मुझे उम्मीद है आप जो यंग जनरेशन हमारी है वो भी इसमें आगे बढ़ेगी, वो भी हाँ जो भी हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं उनको अवेल करेगी. और क्योंकि रिक्वायरमेंट जो है इसमें पैडी स्टा और वीट स्टा है वो लोकली अवेलेबल है, तो आप वो सारा कुछ कर सकते हैं. इसके बाद जो है स्पान प्रोडक्शन है, दैट इज़ अ सेपरेट बिजनेस. एक तो मशरूम कल्टीवेशन एक बिजनेस है, स्पान प्रोडक्शन इन इटसेल्फ इज़ अ बिजनेस. अभी यहाँ पे एक बाहर से कोई आ रहे हैं फार्मर जो स्पान प्रोड्यूस करते हैं और पूरे कश्मीर में सप्लाई करते हैं. एंड in fact he has learned many of the institutions who were engaged in the span production, क्योंकि उन्होंने अपना कास्ट जो है वो बहुत कम कर दिया है. he is selling span per kg at the rate of 120 kilograms, because in Punjab you will have the rate of the wheat grains will be very low. इसका सब्सिट्यूट क्या है wheat grain का? मतलब यहाँ पे लोग तो पॉसिबल नहीं है ना wheat grain. देखो, on the commercial scale you always prefer the substrate which is highly recommended for it. Wheat grains universally are highly recommended for the production of span. But if you talk about the other things, if you are doing at the sustenance base, छोटा सा आप काम करना चाहते हो, तो even you can raise the span on the chopped rice, on the bits straw, rice straw bits, wheat straw bits. You can have it on the grams, you can have it on different other substrates which are locally available. You will not have a cheaper substrate than this straw, है ना? If you will break that and add different ingredients, you can also use that as spawn. ठीक है? So we will be doing it practically, all the steps. जल्दी हो होता है ना वो हम दिखाएंगे ना आपको, जो मशरूम होता है ना उसके नीचे टिश्यू होता ये ड्राई हो जाए. आप ड्राई हो रहा है थोड़ा सा पहले तो आपने इसमें से ये जो ब्लैक स्पॉट्स है या कोई खराब वाला ग्रेन है वो निकाल देना. क्यों निकालना है? क्योंकि जब आपका ये स्पान तैयार हो जाएगा उस वक्त आप देखोगे बॉर्डर में ब्लैक कुछ है या आपका जो कस्टमर है वो बोलेगा ये मैं नहीं लूँगा क्योंकि ये कंटेमिनेटेड है. तो वो बचाने के लिए आपको ये सारा इंश्योर करना है कि आपका जो सीड है बगैर किसी स्पॉट के, देखो ये है ना, ये अगर ये थोड़ा सा भी किसी को नज़र आए बॉटल में तो वो नहीं लेगा, ये बोलेगा ये तो कंटेमिनेटेड है मुझे क्या करना, तो उसकी खिलाफ ही खराब हो जाएगी. तो इसलिए यहाँ पे आपको पहले ही जब आप बीट लाते हो या सिलेक्ट करते हो उसी वक्त आपको देखना है कि आपकी बीट जो अच्छी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए. अभी जो बीट है हमारे पास ये मुझे सीधा सीधा लगता है मिक्सचर है ना, कुछ जो है वो पका हुआ है, कुछ जो है थोड़ा कच्चा ही है ना. लेकिन जब आप कमर्शियली करोगे तो आप क्विंटल्स में वो लाओगे है ना, तो आप अच्छी क्वालिटी का लाओगे. ठीक है? और ये इंश्योर करो कि कोई स्पॉट उपाट ना हो. जब आपने फिर इसको बॉयल किया एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, कितना आपको वीट लगता है, कितना आपने स्पान बनाना है, उसके बाद उसी हिसाब से आपने वे किया कैल्शियम कार्बोनेट और जिप्सम. जब ये अब ये ड्राई हो जाएगा, अभी थोड़ा सा है देखो पानी लग रहा है ना, अब हाथ लगाओ देखो पानी लग रहा है. आप साइड में एट द सेम टाइम यू विल कीप योर बॉटल्स रेडी या बैग्स रेडी. बॉटल्स में भी कर सकते हैं, बैग्स में भी कर सकते हैं. आप बॉटल्स लाइए वहाँ से, तो आप उसको स्प्रेड करोगे किसी टेबल पे
किसी जगह जहाँ आप इसको ड्राई करोगे अंडर शेड, और अगर फैन है तो फैन से भी आप इसको ड्राई जैसे यहाँ कर फैन सकते चल हैं, रहा है। जैसे फैन कर सकते हैं। और जब ये आप देखोगे कि अगर इसमें कुछ इधर उधर कोई है तो वो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जब ये ड्राई हो जाएगा, आपने जो क्वांटिटी आपने वे की है कैल्शियम कार्बोनेट की, जैसे आप आटे में नमक डालते हो ऐसे डालते हो, ठीक है। As per या the तो आप percentage, ऐसे डाल सकते हो सेपरेट सेपरेट, या आप इसको मिक्स कर सकते हो दोनों को जिप्सम को mix भी और करो। इसको भी कैल्शियम कार्बोनेट को। और फिर आप इसमें स्प्रेड करो, ठीक है। ये आपने डाल दिया, फिर आप इसको एक टर्न करोगे ऐसे। हमारा पर्पस क्या है कि यूनिफॉर्मली हर एक ग्रेन के साथ ये मिक्स होना चाहिए। इसमें कोई हाई टेक नहीं है, साइंस नहीं है, ये सीधा कॉमन सेंस की बात है। हम इसको मिक्स कर रहे हैं भाई, एक डेढ़ हमने पहले किया, फिर हमने और उठाया इसको। ये हमने सारा डाल दिया, ये हमने सारा मिक्स कर ये ऑलमोस्ट सारा मिक्स हो गया। ये आपको भी हाथ लगाना चाहिए ताकि जिसका जो काम करना हो ना उसको सिर्फ देखना नहीं चाहिए। लैब का मतलब है कि आप प्रैक्टिकली आप मतलब फील लोगे कैसा होता है भाई, आप हाथ लगाओगे। हाथ लगाने से क्या होगा, आपको पता लगे इसमें मॉइस्चर कंटेंट कितना है। जब आप खुद करोगे ना घर में, हो सकता है आप ड्राई सीड रखोगे फिर उसमें चिपकेगा नहीं। अगर आप देखोगे इसमें हल्का हल्का सा मॉइस्चर भी है, लेकिन वो मॉइस्चर जब आप हाथ लगोगे वो मॉइस्चर हाथ में नहीं आता है, जब आप प्रेस करोगे तब पता लगेगा। तो ये आपने मिक्स कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट फेज़ क्या है, बॉटलिंग। चाहे आप पॉलीप्रोपाइलिन बैग्स यूज़ करो या बॉटल्स यूज़ करो। ग्लूकोज बॉटल्स जनरली यूज़ होती है इसके लिए, जो पैरेंट कल्चर बनाना होता है उसके लिए। फिर बाद में कमर्शियली जो है आप चाहे बॉटल्स बहुत महंगी पड़ती है, आप पॉलीप्रोपाइलिन बैग्स में कर सकते हैं। आप और लाइए, भरिए आप, ये आपका प्रैक्टिकल है। आप भरिए, लाइए बॉटल को वहाँ से। देखिए पूरी बॉटल्स नहीं भरनी है, ये बिलो द नेक, नेक से थोड़ा नीचे ही डालना है आप फुल बॉटल। अब मेरी बात सुनिए, ये फुल बॉटल नहीं डालना है। क्यों नहीं डालना है? क्योंकि अगर आप फुल बॉटल डालोगे ऊपर से आप इसको कॉटन प्लग लगाओ, इसको टच करेगा, फिर हो सकता है बाहर आके फिर जब आप इनॉग्रेशन वगैरह करोगे कंटामिनेशन के चांसेस रहते हैं। इसलिए आपको फुल बॉटल नहीं डालना है, ये इतना इतना डालना है पर बॉटल। डालिए, आप भी आइए, जो 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 करना चाहता है वो कर लीजिए। यार कोई बात नहीं, ये हाथ आप धो सकते हैं बाद में। ये मैं आप सभी को आपको करना चाहिए। जो सीरियस है कि हमें ये काम करना है आपको करना चाहिए, ठीक है। कर लीजिए, फिर मैं आपको बटन दबा एक दो बॉटल और लाइए। ये जैसे हमारे पास बॉटल्स हैं, इसी तरह हमारे पास ये पॉलीप्रोपाइलिन बैग्स हैं। ये हीट रेजिस्टेंट होते हैं, इनसे हम ऑटोक्लेव अगर करेंगे इसको फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप ऑर्डिनरी बैग्स में डालेंगे तो वो ऑटोक्लेव में चिपक जाएंगे जल में, ठीक है। तो इसके लिए एक नेक होता है जिसको हम ये नीचे डाल देते हैं। हम ये नेक बाद में डाल, पहले हम इसको ये बचेंगे। थोड़ा सा रखो, थोड़ा सा रख दो, थोड़ा सा एक बोतल के नीचे से डाल दो। ये इसलिए आपको दिखाने के लिए कि बोतल महंगी हो जाती है ना, पॉलीप्रोपिलीन बैग्स ये सस्ते हो जाते हैं और दे आर ऑटोक्लेवेबल। पर ये इंश्योर करना है कि ऑटो, क्योंकि इसमें इसके बाद ऑटोक्लेव करना है। ऑर्डिनरी पॉली ये ना हो, लिफाफा ना हो, वैसा हो जो ऑटोक्लेव मतलब ऑटोक्लेव जिसकी हो सके, जो जल ना जाए, जो हीट रेजिस्टेंट हो। दिस टाइप ऑफ पॉलीप्रोपिलीन बैग इज ऑटोक्लेव। 1/3 पोर्शन आप भरोगे, फिर आप इसको कवर करोगे बॉटल। ये मार्केट में मिल जाती है, उसको सिर्फ ऑटोक्लेवेबल बोलना है। पॉलीप्रोपिलीन बैग इज ऑटोक्लेवेबल। अभी आपने जो
जो बॉटल्स में कॉटन प्लग बनाना है, ये आपका ये कॉटन प्लग आ गया और ये 3/4 आपका स्पॉन आ जाएगा इसमें, ठीक है। फिर जो बॉटल्स हैं कॉटन प्लग जब आप बनाएंगे, इसमें एक प्रिंसिपल होता है कि प्लग जो है आपका टाइट होना चाहिए, ठीक है। ये आप टाइट प्लग कैसे बनाएंगे, ये आप इसको टाइटली प्रेस करेंगे और रोल करेंगे, ठीक है। जब आप जितना टाइटली करोगे और बॉटल को फोल्ड करना है, फिर आप इसमें डालोगे। ये आपका कॉटन प्लग आ रहा है। लेकिन ये कॉटन प्लग यूजुअली आम तौर पे अगर आप देखोगे लोग क्या करते हैं, उसको लूज रखते हैं, तो फिर कंटेमिनेशन भी जा सकती है, क्योंकि इसका पर्पस क्या है, टू प्रिवेंट द आउटसाइड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एंटरिंग इनटू द बॉटल। अगर ये लूज होगा तो वो चांसेस रहते हैं। तो ये प्लग का उसूल ये है कि आप इसको ऐसे पकड़ने चाहिए, इतना हार्ड टाइट होना चाहिए कि आप इसको जब आप इनॉकुलेशन करोगे तब तक ऐसे बन गया। तो ये ऐसे आपको बनाने, ये आप बनाइए सारे, ये आप बनाइए। देखो एक मैंने बनाया है, आप ऐसे ही ट्राई कीजिए, ताकि ये तो आपके प्रैक्टिकल है, कल आप ये तो आपको प्रैक्टिकल है, कल को आप ये करोगे तो आप सीख लो इसको खुद ही बनाना, है ना, आप सीख लो। चलो यहाँ आ जाओ, एक आप बना लो, आ जाओ, बोलिए आ जाओ, जिसको बनाना है वो यहाँ सीख लो। कॉटन प्लग कैसे बनाना है, जैसे डॉक्टर साहब ने आपको दिखा दिया किस तरह से हमने पहले बॉईल कर दिया, उसके बाद कैसे हमने कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट इसमें मिक्स कर दिया। अब इसको आप बोतल में डाल दिया आपने, अब आप कॉटन प्लग कैसे करोगे, एंड नेक्स्ट स्टेप विल बी, ये सही है, बस कॉटन प्लग टाइट होना चाहिए। इसमें ये है कि टाइट होना चाहिए, इसमें कोई कंटेमिनेट नहीं जाना चाहिए, लूज नहीं होना चाहिए। अगर इसको आप मतलब ऐसे पकड़ो ना, ये निकल आना चाहिए। ये कॉटन प्लग बनाना जब हम एमएससी स्टूडेंट को शुरू में दिखाते हैं तो उसको भी पहले हम सिखाते हैं कि कैसे आप कॉटन प्लग बनाओ। ये कॉटन प्लग्स अक्सर कोनिकल फ्लास्क में, बाकी सब चीज़ में डॉक्टर साहब बताएंगे। तो आइए डॉक्टर साहब, देखो ये प्लग जो है ना, देखो ये परफेक्ट नहीं है, नहीं वॉलंटियर मगर वो पहुंचने वाला उसको टच नहीं करना चाहिए। मैंने आपको सामने बनाया ना, ये देखो आप ये सामने रखिए ना, आप उसी हिसाब से कॉटन भी लीजिए। क्या ओपन, ये ओपन ईयर क्यों, क्योंकि इन्फेक्शन हो यहाँ पे, लेकिन क्योंकि हम इसको ऑटोक्लेव कर रहे हैं तो खत्म हो जाएगा। हाँ बहुत अच्छा, टाइट बनाया। ये देखो ये से अच्छा बनाया है आप सभी ने। ये देखो ये ओपन नहीं होना चाहिए, जैसे मैंने आपको दिखाया था वो ओपन नहीं। देखो ये ओपन है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये देखो ये बहुत ज़्यादा कॉटन यूज़ किया है लेकिन रोल नहीं किया। ये छोटी छोटी बातें जो है ना, इनसे किसी चीज़ का सक्सेस जो होता है ना, उस रेट पे फर्क पड़ता है। अगर आप इसको ऐसे रखोगे ना और फिर ऑटोक्लेव करोगे, फिर इसमें पानी भी जाएगा, कुछ भी जाएगा, आपका सारा मेहनत, सारे रिसोर्सेज खराब, क्योंकि वीट आपने टाइम दिया इतना, फिर वीट यूज़ किया, फिर कैल्शियम का वो सारा खराब। इसलिए ये छोटी छोटी बातें इनका ध्यान रखना है ताकि आप एक प्योर स्पान बना पाओ और जो आपको जो कमर्शियली फिर एक्सेप्टेबल हो। अगर आप स्पान बेचोगे 100 बॉटल में 20 बॉटल अगर जो आपका कस्टमर है वो देगा ख़राब है, तो वो क्यों लेगा आप, तो बोलेगा ये तो ऐसे ही। आपकी 99% बॉटल, 99.5% बॉटल्स विदाउट कंटेमिनेशन, ठीक है। ये हो गया, ये मेरा स्टेप था। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज ऑटोक्लेविंग। ये हम दोबारा इसको बना देंगे, अगर हम इसको टाइट करेंगे इतने में ही ये काम हमारा। ठीक है, बन गया। तो ये कोई बड़ा मसला नहीं है, एक दो बार आप इसको है करना सीखो। देखो हम लोग में प्रॉब्लम ये होती है कि पता नहीं क्यों हम लोग खुद हाथ से कर रहे हैं, बस मैंने देख लिया। जब आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, जब आप कोई एंटरप्राइज स्टार्ट करना चाहते हो, आपका उसको A to Z आप अपने हाथ से जब कंप्लीट सीखोगे, तब आप अपने जब आप मुलाजिम रखोगे या काम करने वाले रखोगे तो बता पाओगे भाई ऐसे गलत है, ऐसे ठीक है। इसका ढक्कन साइड में रखना है। इसमें वाटर लेवल देखना है। वाटर लेवल यहाँ पे आता है सर, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ एक डॉट होता है,
आपको सर ये करने हैं हाँ वो बाद में अपडेट कीजिए। दूसरा वाला पहले जब आप ऑटोक्लेव यूज़ करोगे आपको ये ओपन करके इसमें वाटर लेवल चेक करना है। अगर इसमें पानी जो यहाँ पे निशान एक है अगर उससे कम है तो इट इज़ एट रिस्क, ये जल सकता है क्योंकि आपका हीटर ड्राई चलेगा तो ये एलिमेंट ही जला देगा। तो इंश्योर करना है कि वाटर लेवल रिक्वायर्ड जो पॉइंट है वहाँ तक हो। उसके बाद इसमें एक बास्केट होती है, ये जो बास्केट होती है इसमें आप ये अपना रख सकते हो। इसमें थोड़ा पानी अभी आप देखिए पानी थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि ये टच नहीं करना चाहिए बास्केट को, ये एक प्रिंसिपल होता है, इससे नीचे रहना चाहिए, ऊपर नहीं आना चाहिए। और फिर आप इसमें क्या करोगे, आप अगर आपके पास टिन फॉयल है आप इसको कवर करोगे, या अगर आपके पास मोटा पेपर भी है वो कवर करके आप कोई पेपर लाइए मोटा सा या टिन फॉयल लाइए। चलिए आप कोई भी रफ पेपर आप ऐसे कर सकते हैं और इसके बाद रबर बैंड से इसको बंद कर सकते हैं, या अगर आप थोड़ा पैसा खर्च करना चाहते हैं तो टिन फॉयल लाइए, वो भी ज़्यादा महंगा नहीं है, वो कवर करके। क्योंकि अगर आप ऐसे ही करेंगे तो चांसेस है, क्योंकि यहाँ तो स्टीम बनेगी, जो स्टीम बनेगी तो वो इसके अंदर तो जाएगी ना, ये है ना, तो पानी जब इसके अंदर जाएगा तो आपका ये सारा खराब हलवा बन जाएगा, ये ख़राब हो जाएगा। तो वो प्रिवेंट करने के लिए आपको इसको कवर करना है, रबर बैंड रखना है और फिर आप ना इसमें डाल के ऑटोक्लेव करना है। अब ऑटोक्लेविंग जो है नॉर्मल जो प्रोसीजर है वो हम करते हैं, अगर हमें मीडिया स्टलाइज करना हो हम करते हैं 15 मिनट्स पर ऑटोक्लेविंग, लेकिन आफ्टर द ऑटोक्लेव हैज़ रीच द टेम्परेचर ऑफ 101.4 डिग्री सेंटीग्रेड, 121 डिग्री सेंटीग्रेड जब इसका हो जाता है उस वक्त ये खुद ही एक आवाज़ देता है, सीटी दे देता है, बजर इसका बज जाता है। उस वक्त के बाद हमें 15 मिनट स्टलाइज करना होता है मीडिया स्टलाइज करने के लिए। लेकिन जब हम इसको स्पान को स्टलाइज करते हैं तो इसको हम 1.5 से 2 घंटे उसके बाद रखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा थिक होता है, अंदर से इसका टिश्यू होता है, तो इसको प्रॉपर मेंटेन स्टलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, 1.5 से आफ्टर इट हैज़ रीच द टेम्परेचर ऑफ 121.4 डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्रेशर ऑफ 15 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, देन वी कीप इट फॉर अनदर 1.5 to 2 hours, ठीक है। तो द प्रोडक्ट व्हेन इट दिस विल बी कंप्लीट, तो फिर आप इसका प्रेशर वेल्व जो है वो रिलीज़ करेंगे प्रेशर, और फिर व्हेन इट विल बी कूल डाउन इट विल रीच द रूम टेम्परेचर, फिर आप इसको ओपन करेंगे और अपनी जो फ्लास्क है वो आप बाहर निकालेंगे। इससे इसको ऊपर उठाते हैं, आप सारे इसको जला के आप जलाइए मैं अब सारे आगे आगे आइए, यहाँ से आइए। ये जो लैमिनार एयर फ्लो कैबिनेट है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ वर्किंग इन दिस? The purpose is that we get a clean aseptic environment, sterile environment. And why we get the clean environment? How we get the clean environment? This is because of the filters in the back of this equipment. उन filters को बोलते हैं HEPA filters, high energy and high efficient particulate air filters. ठीक है? वो filters जो है वो आपका 0.3 माइक्रोन, जो 3 माइक्रोन साइज होता है, माइक्रोन को पता है कितना छोटा होता है, उससे बड़ा जो भी साइज होगा वो उसको फिल्टर करेगा, वो उसको अंदर नहीं आने देगा। एक तो ये है कि विल गेट स्टेराइल एयर, दूसरा है कि अगर हमें काम करना है तो 20 मिनट पहले हमें इसको यूवी लाइट डालनी है, जो भी सरफेस कंटेमिनेशन होगी वो ऑटोमेटिकली यूवी लाइट से किल हो जाएगी। और जब आप इसको स्टार्ट करोगे तो आपको यूवी लाइट पहले ऑफ करनी है, बाकी लाइट जो है ब्लावर ऑन करना है, और बाकी भी लाइट्स होती हैं इसमें फ्लोरेसेंट लाइट, वो भी वो ऑन करना है। वहीं से बंद है स्विच। अब एक बॉटल लाओ जिसमें से पानी होगा। दर्शक डॉक्टर साहब तल की चेयर वेयर दो, ये ठीक है, चेयर टूल कैसे किन चेयर वेस? अब जैसे जो ये बड़ा है वैसे ये बड़ा थोड़ा लंबा पास टूल है, चेयर छोटा सा इसे चेयर है ना, छोटा सा ये चेयर दे दो डॉक्टर साहब को। देखो हम इसको इन दो को रखते हैं। सपोज ये हमारा स्पान बना हुआ है, लेकिन कौन सा स्पान होगा, ये कौन सा स्पान होगा, कल आपने लेक्चर एक लिया है, ये होगा हमारे पास मास्टर स्पान, ठीक है, जो मास्टर कल्चर से बना हुआ है। मास्टर कल्चर क्या होता है, जो हमने फंगस से माइसीलिया बिट लिया या टिश्यू बिट लिया
उसको इनॉकुलेट किया पेट्री प्लेट में, और जो कल्चर आएगा उसको जब हम इस बॉटल में करेंगे ये हमारा मास्टर कल्चर बनेगा। सपोज़ कि ये हमारा मास्टर कल्चर तैयार है। अब हमें कमर्शियल कल्चर बनाना है, कमर्शियल स्पान बनाना है। तो मास्टर कल्चर से ये मास्टर कल्चर तैयार है। आप ये जो आपका स्प्लिट लैंप है, सारा काम अगर आपके पास पेट्री प्लेट एक दो और है, पेट्री प्लेट दे दो एक और, और पेट्री प्लेट और। चलिए मैं ऐसे बता देता हूँ। ये जो स्प्लिट लैंप है ये आपने जलाना है, उसके बाद जो है जो सारा काम करना है वो इन फ्रंट ऑफ फ्लेम आपको करना है। ठीक, नेक्स्ट स्टेप जो है कमर्शियल स्पान के लिए मास्टर स्पान हमारे पास है, इसको ट्रांसफ़र करना है इसमें, कुछ ग्रेन करने हैं ताकि यहाँ पे बंद हो। लेकिन जब भी आप ओपन करेंगे आप इन फ्रंट ऑफ फ्लेम करेंगे, यानी कि फ्लेम के ऊपर करेंगे आप जल जाएंगे। फ्लेम से थोड़ा दूर रह के इन फ्रंट ऑफ फ्लेम सामने, फिर आप इसको खोल सकते हैं। जैसे मैं खोलूँगा वैसे आपको भी यहाँ से खोलूँगा, आप सीधा इसको खोलिए। ठीक है, ये खुल गया बट इट इज़ इन फ्रंट ऑफ फ्लेम, ये बात याद रखनी। ठीक है, आप भी ऐसे उठाएंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं खोलना, खोलना यहाँ पे। और फिर इसी के सामने आप इसके कुछ ग्रेन जो है इसमें डालोगे, यहीं पे इसको बंद करोगे, यहाँ पे इसको फिर थोड़ा सा जलाओगे टू अवॉइड कंटामिनेशन, और इसको सील करोगे। ठीक है, और जब ये बन गया आप इसको थोड़ा शेक करोगे। ये आपका जो मास्टर स्पान था वो अब इसमें थोड़ा सा आ गया। ये क्या करेगा यहाँ पे, फिर हम यहाँ से हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है इंक्यूबेशन। एक जगह रखना जहाँ ये स्पान लावा फैलेगा। तो वो स्पान कुछ ग्रेन आ गए इसमें, तो ये ग्रेन कुछ टाइम लेगा इसमें सब में फैलने के लिए। इसके लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होती है। बटन मशरूम में वो रिक्वायरमेंट है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये जब इसको आप आपने इनॉकुलेट किया, फिर थोड़ा सा शेक किया ताकि ग्रेन थोड़ा नीचे जाए, फिर आपने रखा वहाँ पे जो BOD इंक्यूबेटर है, या आपके पास स्पा रूम है, इंक्यूबेशन रूम होता है। अगर आप लोअर लेवल पे कर रहे हो तो आप BOD में कर सकते हो। अगर आपके पास 2000 बोतलें हैं, 10,000 बोतलें हैं, या 10,000 बैग्स हैं, तो आप कहाँ पे करोगे? इंक्यूबेशन रूम में। ठीक है, तो ये आप रखोगे इंक्यूबेशन रूम में जहाँ का टेम्परेचर 25 ± 1 डिग्री या 2 डिग्री सेंटीग्रेड। आप फिर 4 दिन के बाद क्या करोगे? जब आप देखोगे कि यहाँ ऊपर से माइसीलियम, जहाँ ये ग्रेन थे वहाँ से माइसीलियम रन स्टार्ट हो गया। अगर हम फिर वेट करेंगे तो इसको नीचे तक पहुँचने के लिए बहुत टाइम लगेगा ना। तो हम क्या करते हैं, फिर हम इसको शेक करते हैं। ठीक है, वो ब्रेक करते हैं, वो क्लाउड जो है वो ब्रेक हो जाता है, और फिर हम इसको शेक करके रख देते 3 दिन के बाद, 3 से 4 दिन के बाद रख दिया हमने। फिर वैसे अब क्या हो गया, जो ग्रेन्स थे वो नीचे तक फैल गए, है ना। तो स्पान नीचे भी पहुंचेगी, नीचे वाले ग्रेन्स को भी पहुंचेगी। फिर और 4 दिन 3 दिन के बाद क्या करोगे, आप देखोगे कि इतना वाला बन गया है, तो फिर आप इसको फिर शेक करोगे। शेक करते वक्त ये ध्यान रखना है कि ये जो है कॉटन के साथ टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉटन हमने वहाँ खोला, हो सकता है कॉटन के साथ ये माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स होते हैं जो नज़र नहीं आते, हो सकता है कॉटन के साथ मिला हो, तो हमारा कंटेमिनेट नहीं होना चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं कि इसको टच नहीं होना चाहिए। हमने फिर शेक किया, दूसरी बार भी शेक किया, फिर आपने रखा। तो नेक्स्ट 4 डेज में आप देखोगे ये जो फुल रन, जैसे वो बैग है वो लाइए यहाँ पे, वो वाला बैग, वो वाला स्पान। तो ये आपका अगर आपने बैग्स में किया है तो फिर ये आपका 12 दिन के बाद रेडी हो जाएगा, स्पान रेडी हो जाएगा। 2 बार शेकिंग, 2 से 3 बार शेकिंग कर सकते हैं। तो ये आपका फाइनल स्पान रेडी है। चाहे आप इसको PP पॉलीप्रोपाइलिन बैग्स में करें, बिज़नेस करें, या स्पान बिज़नेस भी अलहदा आप कर सकते हैं, क्योंकि स्पान की बहुत डिमांड रहती है इसमें। लेकिन रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास लैमिनार एयर फ्लो होना चाहिए और ऑटोक्लेव होना चाहिए। ज़्यादा इक्विपमेंट क्या लगती है, एक ये एक वो। दूसरा, अगर आपके पास देखो इंक्यूबेशन रूम जो होता है वहाँ आपको हाई क्लास इक्विपमेंट्स नहीं चाहिए। इवन यू कैन यूज़ सिंपल हीटर टू रेज द टेम्परेचर। कश्मीर में तो हमें टेम्परेचर ही बढ़ाना है ना 25 डिग्री करने के लिए। अभी टेम्परेचर कितना है, 18-20 डिग्री। तो जब हम हीटर लगाते हैं तो वो 25 डिग्री हो जाता है। ठीक है, AC की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं है, और ये बिज़नेस जो है विदाउट एनी रिस्क है मेरे हिसाब से। जब आप बटन मशरूम करोगे या कोई और मशरूम करोगे, थोड़ा बहुत रिस्क रहता है, क्योंकि 3 महीने तक आपको करना है। ये आपका 12 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। और मैं आपको ये चाहूँगा कि आप में से बहुत सारे लोग इसमें करें और इससे अपना पार्ट टाइम इनकम बने। और अगर आप खुद सफिशिएंट है, सेल्फ सफिशिएंट है, तो आप दूसरों को एक एंटरप्राइज स्टार्ट करके दूसरों को ये काम सिखाएं अपने महल